students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is our universe. Tickle your brain to answer. What is the head of our solar system? हमारे solar system का head क्या है? What goes around the earth? It shines at night. जो earth के आसपास गोल गोल होता है वो क्या होता है? रात के टाइम पे ये shine भी करता है. Our universe is a vast open space which includes everything that exists as matter or energy. It consists of all the stars, the solar system, galaxies, planets and other celestial bodies. जो universe है बहुत vast है, expanded version है, space है और जितनी भी चीज़ें present होती हैं, जितने stars होते हैं, solar system होती हैं, galaxies, planets, celestial bodies होती हैं, सारी ही आपके universe में present होती हैं. Our solar system consists of the sun, earth, planets, moon and other heavenly bodies such as asteroids, comets, meteors, etc. Solar system में sun, earth, planet और moon के अलावा भी heavenly bodies होती हैं जो होती हैं asteroids, comets and meteors. The sun. The sun is a star. It is a huge ball of burning gases that gives us light and heat. It is very far from Earth. It is the head of the solar system. The sun is very big, much bigger than the Earth. All the planets revolve around the sun. जो sun है, it is a star. Circular है, it is a ball of burning gases. बहुत ज़्यादा heat होती है, light भी इसी से आती है और Earth से ये बहुत ज़्यादा दूर भी है. सोलर सिस्टम का जो हेड है वो है सन. सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम. सन नहीं होगा तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाएगा और अर्थ के साइज से ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उससे भी ज्यादा बड़ा. प्लैनेट्स. Planets are the heavenly bodies which move around the sun. There are 8 planets including Earth in the solar system. तो प्लैनेट्स जो हैं हेवनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास रिवॉल्व करती रहती हैं. अर्थ को इंक्लूड करके टोटल आपकी 8 ऐसी हेवनली बॉडीज हैं जिनको प्लैनेट्स कहते हैं. दीज आर नंबर 1 मर्क्यूरी, 2 वीनस, 3 अर्थ, 4 मार्स, नंबर 5 जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस, 8 नेपट्यून. तो विद रिस्पेक्ट टू द सन इनके जो डिस्टेंसेस हैं उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे आपको 8 प्लैनेट्स जो सन को रिवॉल्व करते हैं गिवन है. Planets do not twinkle as they do not have light of their own, but they bounce back the light of the sun. जितने भी planets होते हैं उनमें जो अपने आप लाइट एमिट करने की क्षमता होती है वो नहीं होती है, इसी वजह से ये ट्विंकल नहीं करते हैं. बट द लाइट दैट इज एमिटेड फ्रॉम द सन ये बाउंस बैक होती है जिसकी वजह से हमको कुछ planets विजिबल हो जाते हैं. नो इट टू. Pluto was earlier a part of our solar system. It has now been classified as a dwarf planet. तो हमारे जितने planets हैं 8 planets हैं, पहले प्लूटो भी सोलर सिस्टम का ही planet था, पार्ट था, नोवा planet था, बट अब उसको सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड करके एक dwarf planet की कैटेगरी में डाल दिया गया है. एक्टिविटी. Discuss with your teacher and parents and name the number 1 smallest planet, number 2 largest planet, number 3 brightest planet, number 4 farthest planet, number 5 planet to have rings around it. तो ये 5 आपको अलग अलग प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं. आपकी टीचर और पेरेंट्स की मदद से आपको लिखना है कि कौन सा सबसे छोटा प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स प्रेजेंट हैं. स्टार्स. At night we see thousands of stars twinkling in the sky. Stars are huge balls of fire and gases. These are present in the sky during the day as well as at the night. We do not see them in the daytime because of the bright sun. जो नाइट टाइम होता है उसमें आपको बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देंगे. These stars are nothing but just huge balls of fire and gases. ये दिन के टाइम पे भी प्रेजेंट होते हैं, इट्स जस्ट दैट हमें दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. Sometimes we see stars in different groups. These groups of stars make different types of shapes. These shapes are named after ancient people or animals and are called
constellations. Some commonly seen constellations in the night sky include Ursa Major, the Great Bear, and Orion, the Hunter. ये जो स्टार्स होते हैं ये रात के टाइम पे एक साथ ग्रुप में फॉर्म होके एक पर्टिकुलर फिगर बना देते हैं, और इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो एक पर्टिकुलर फिगर बना देते हैं इन्हें कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है. एंशियंट टाइम्स में जो फिलोसोफर्स होते थे या साइंटिस्ट होते थे उनके नाम के पीछे इनका नाम रखा गया है. कुछ ऐसे कॉन्स्टेलेशन के एग्जाम्पल है आपकी उर्सा मेजर, जिसको ग्रेट बेयर भी कहा जाता है, एंड ओरियन द हंटर. There are 88 known constellations in the sky. In the north, we can see a very bright star called the pole star. The pole star helped the sailors in the olden days to know about the directions as it always points towards north. तो टोटल आपके 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं जो लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं. एक सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है जो नॉर्थ डायरेक्शन शोकेस करता है, वो है पोल स्टार. और पहले के टाइम में जो सेलर्स होते थे, जो सेल करा करते थे नदियों में, वो इसी पोल स्टार की मदद से डायरेक्शंस का पता लगाते थे, क्योंकि ये पोल स्टार सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन को ही डिपिक्ट करता था. नो इट टू. A galaxy is a group of billions of stars. The solar system is a part of the Milky Way galaxy. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं और जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. An instrument known as telescope helps us to see the stars, the moon and the planets clearly. टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू आप अर्थ में बैठे बैठे ही अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टार्स, मून एंड इवन प्लैनेट्स को देख सकते हैं. मून. The moon is the clearest thing seen in the night sky on most of the days. It moves around the earth in the same way as the earth moves around the sun. The moon is also called the earth's satellite. A satellite is an object that moves around a planet. जो मून होता है सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट थिंग है, क्लियरेस्ट स्टार है जो आपको नाइट स्काई में कभी कभी पूरे फॉर्म में दिखाई देता है. और जिस तरीके से अर्थ सन के आसपास रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसी तरीके से मून भी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इसी वजह से मून को अर्थ का सैटेलाइट भी कहा जाता है. इट takes 29 days to complete one circle around the earth. The moon does not have light of its own. It reflects the light of the sun. तो जो मून होता है उसको टोटल 29 डेज लगते हैं अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने के लिए. अर्थ में अपनी लाइट नहीं होती है, सन की लाइट वो डिपिक्ट करता है. सिमिलरली मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ इसीलिए शाइन करता है क्योंकि वो सन की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है. There is no atmosphere on the moon and hence life does not exist on it. The moon looks big in the sky because it is closer to us than the sun. Many spacecrafts have been sent to the moon. जो मून होता है, जैसे अर्थ में एक एटमॉस्फेयर होता है, थिक लेयर होती है एयर की, बट मून में ऐसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है. हमको जो मून है वो सन के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है या साफ दिखाई देता है. द रीज़न इज कि मून जो है वो अर्थ की सरफेस के पास है एज कंपेयर टू द सन. नो इट टू. In 1969, Neil Armstrong became the first human to land and walk on the moon. His footprints on the moon will stay there forever. There is no air or water to blow them off. तो 1969 में सबसे पहले ऐसे अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक एस्ट्रोनॉट थे, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड वॉक. उनके फुटप्रिंट्स हमेशा ही मून के सरफेस पे रहेंगे क्योंकि मून के सरफेस पे कोई एयर या वाटर नहीं है जो उन फुटप्रिंट्स को हटा सके. फेजेस ऑफ द मून. We see different shapes of the moon every night. It is due to the change in position of the earth that the moon appears to change its shape. These different shapes of the moon are called the phases of the moon. जो मून है अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको डेली बेसिस पे मून का सेम शेप दिखाई नहीं देगा. इट इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ, सन एंड द मून. तो इन तीनों की पोजिशनिंग की वजह से जो मून होता है आपको अलग अलग शेप्स या साइजेस में दिखाई देता है, एंड दीज डिफरेंट sizes and shapes of the moon are known as phases of the moon. When the moon is between the earth and sun, we cannot see the moon at all. This is called the new moon or
अमावस्या। तो जिस टाइम पे अर्थ और सन के बिल्कुल बीचों बीच मून होता है उस टाइम पे आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, और वही टाइम होता है न्यू मून का, यानी कि अमावस्या का। 2 or 3 days after this we see only a part of the moon. This is called क्रेसेंट मून। और इसी न्यू मून के 2 से 3 दिन के बाद आपको थोड़ा सा पार्ट दिखाई देने लग जाएगा मून का, और इसे कहते हैं क्रेसेंट मून। Within a week we see half the moon. This is called the first quarter or half moon. When little more than half of the moon is visible to us, it is called gibbous moon. उसके कुछ टाइम अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ते के बाद आपको हाफ मून दिखाई देने लग जाएगा, इसको फर्स्ट क्वार्टर या फिर हाफ मून कहा जाता है। और जब हाफ मून से हल्का सा ज्यादा आपको मून दिखाई देने लग जाता है उस मून को कहते हैं गिबस मून। Within 2 weeks we see the full moon, पूर्णिमा, when the earth comes between the sun and the moon. उसके ठीक 2 हफ्तों के बाद आपको फुल मून, जिसे पूर्णिमा भी कहा जाता है, वो आपको दिखने लग जाता है। दिस हैपेंस जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है। After this, the size of the moon appears to decrease again. When it completes the circle, we cannot see the moon again. उसके बाद वापस से आपको जो पूर्णिमा के दिन के बाद वापस जो मून का साइज है वो डिक्रीज होने लग जाता है, and this cycle again continues. Know it too. The moon is called luna in Latin. A lunar month is the time from one new moon to another. तो लैटिन में मून को लूना कहा जाता है, और लूनर मंथ होता है न्यू मून से दूसरे मून का जो टाइम पीरियड होता है उसे लूनर मंथ कहा जाता है। Keep in mind, universe, vast open space which includes everything that exists as matter or energy. Solar system consists of the sun and all the bodies that move around the sun. Orbit, the fixed path taken by a planet to go around the sun. Satellite, an object that moves around a planet. Phases of the moon, the changing shape of the moon that we see every night. Constellations, groups of stars forming a pattern in the sky. तो यूनिवर्स एक वास्ट स्पेस है जिसमें आपके अलग अलग स्टार्स और हेवनली बॉडीज प्रेजेंट हैं। सोलर सिस्टम में आपका सन है जो कि पूरा सोलर सिस्टम का हेड है, उसके साथ इसके 8 अलग अलग प्लैनेट्स भी हैं। ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट जो होता है वो किसी भी एक प्लैनेट के आसपास चारों चक्कर उसके काटता है। फेजेस होते हैं मून के जिसमें उसके साइज धीरे धीरे चेंज होता रहता है। कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक सर्टेन फिगर बनाते हैं। रैप इट अप। Our universe is a vast open space which includes everything that exists as matter or energy. The sun is a huge ball of burning gases that gives us heat and light. There are 8 planets including Earth in the solar system. Stars are huge balls of fires and gases. There are 88 known constellations in the sky. In the north, we can see a very bright star called the pole star. A satellite is an object that moves around a planet. It is due to the change in position of the earth that the moon appears to change its shape. तो यूनिवर्स एक वास्ट स्पेस है जहां पे आपकी अलग अलग टाइप के स्टार्स, एनर्जी और मैटर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड हीट। इसके अलावा आपके 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं। कॉन्स्टेलेशंस यानी कि वो स्टार्स के ग्रुप जो एक सर्टेन फिगर फॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक ब्राइट स्टार होता है जिसका नाम है पोल स्टार, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखा जाता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपको खुद से करनी है।